Hello and welcome everyone for this 23rd session of Rajkot, organized by Rajkot Management Association, and we are very thankful to IMA for connecting us with Dr. Shikha Sharma, and very grateful to have you, ma'am, here. Uh, this is a part of we are conducting this online series as a part of Rajkot embracing lockdown, and I'll introduce Dr. Shikha, and the stage will be her. She'll continue her presentation for about 30 minutes, and then we'll take Q&A. We will wish to have more interactions. Ma'am, if you don't mind, can we have the session in Hindi so that, Yes. yeah, Yes. This fine. is Uh, uh, so our topic is immunity, nutrition, and self-care in the COVID-19 era. And I'm very obliged and I'm very thankful to ma'am that during this period when the immunity is so much necessary, so much like we are bound to stay eat healthy these days, uh, take care of the immunity, and we have a session which can guide us how to do it. Um, Madam is a medical doctor by training from Maulana Azad Medical College, New Delhi. She founded Dr. Shikha's NutriHealth with a desire to work in the prevention of lifestyle-related disorders. The organization is a pioneer in integrating modern nutrition with Vedic nutrition and serves clients across the globe. She has built a telenutrition center and a personal health app, which is Vedic Diet app. I'm surely going to look into it. It seems very wonderful, and which helps in delivering personalized advisory and compliance monitoring is another pioneering concept introduced in the era of wellness. So uh, the name suggests that uh, healthy eating and tech enabled nutrition advisory. So again, very going with the technological advancement which we are seeing these days, like everybody is now on Zoom doing these sessions and advancing along with the technology. We have even in the health sector we have tech enabled nutrition advisory, which is we are glad to have a glimpse of it. Um she also Dr. Shikha had a weekly column for 11 years in the national newspaper HT Branch. She has also been quoted by several other leading newspapers and magazines like Times of India, Femina, Cosmopolitan, Huffington Post, Economic Times, to name a few. She appears regularly on television channels like NDTV, CNBC, Z News, and others. She is invited frequently for giving talks by The Economist magazine and ASSOCHAM, All India Management Association, TIE Delhi, and many others. And a lot of accolades she has, a lot of feathers she has on her hat. She has been health advisor to many celebrities, hoteliers, chief ministers of Indian states, and one late prime minister, among others. Welcome you, ma'am, and very grateful to have you today. We might have participants from, we have our executive council members currently attending the session. We will have a lot of young people as well, and our members and well-wishers as well. Over to you, ma'am. Thank you so much for inviting me and for organizing this session. And it's really a pleasure because like you mentioned very well that today technology is helping healthcare to reach far and wide. And this is a small example of how technology can help in reaching far and wide. So आई थिंक आज जो मेरा जो टॉपिक रहेगा वो कुछ तो इम्यूनिटी पे रहेगा क्योंकि इम्यूनिटी लाइक वी ऑल नो कि आज एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए. और इंटरेस्टिंग ये है कि आज तक हम ये सोचते थे कि हम अगर हम स्ट्रांग हैं और अगर हमारा देश स्ट्रांग है वेपन्स में और डिफेंस वॉरफेयर में तो देश स्ट्रांग रहे, मतलब फिर देश स्ट्रांग है. बट अगर वायरस अटैक करता है किसी देश को और उसके लोगों को तो
इंटरनल डिफेंस उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि अटैक इंटरनली भी आ सकता है, एक्सटर्नली भी आ सकता है। एंड सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रांग बनाएं, अपने बच्चों की शरीर को कैसे स्ट्रांग बनाएं। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया। सो आई वाज स्टडीइंग टू बी अ डॉक्टर एंड मैंने अपनी मेडिसिन फिनिश करके मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एज अ वेरी जूनियर डॉक्टर जीबी पंत हॉस्पिटल में हुई। तो दिल्ली में दो बहुत बड़े गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं। ऑफ कोर्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट इज देयर, बट इंस्टीट्यूट एम्स इज द सुपर स्पेशलिटी टॉप इंस्टीट्यूट, बट वो बहुत बड़ा नहीं है। तो जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो है लोकनायक जयप्रकाश एलएनजेपी और जीबी पंत हॉस्पिटल, जिसमें बहुत दूर दूर स्टेट से लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने। तो जब मेरी इंटर्नशिप एलएनजेपी में हुई थी और फिर उसके बाद मुझे पोस्टिंग दी गई जीबी पंत हॉस्पिटल में, और वो पोस्टिंग थी मेरी कार्डियोलॉजी में। और कार्डियोलॉजी में एक बहुत ही यंग एज पे, आई मस्ट बी स्टिल इन माय अर्ली 20s, मैंने देखा कि आईसीयू में जब पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, उसके परिवार वालों की क्या स्थिति होती है। और हर दिन, क्योंकि बहुत बड़ा आईसीयू था, क्योंकि उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है न्यूरोलॉजी और कार्डियक का, तो वहां पे हर दिन एक मरीज की डेथ होती थी, क्योंकि वो बहुत लेट आते थे आईसीयू में और उनको सारे ट्रीटमेंट्स देने के बावजूद वो सरवाइव नहीं करते थे। तो एज ए यंग डॉक्टर ये मुझे बहुत इसका मेजर इम्पैक्ट आया। और अगर मैं रियली देखूं उसको कि आईसीयू में जो पेशेंट्स आते थे हार्ट अटैक के साथ, उनकी जर्नी कैसे होती है। जर्नी लाइक एग्जांपल, वो 20 साल पे सपोज कोई काम करना शुरू करता है, 25 साल पे काम करना शुरू करता है, तो 45-50 तक वो अपना एक बिजनेस खड़ा करता है, अपनी प्रोफेशन में किसी एक स्तर तक पहुंचता है, एक स्टेटस तक पहुंचता है। और अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बड़ी प्रॉब्लम, जैसे आजकल कोविड की है, और हर युग में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर्स हो, चाहे वो बैटल्स हो, चाहे वो प्लेग हो, चाहे वो भूकंप हो, अर्थक्वेक हो, और उसका सारा जो उसने बनाया है, जो खड़ा किया है, वो खत्म हो जाता है। और इस शॉक को कई लोग बेयर नहीं कर पाते। और ऐसे कौन लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, जिन्होंने अपने काम में अपनी सारी एनर्जी लगाई है और अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर किया है। यानी कि वो अपनी हेल्थ का जो उनकी एक एसेट है उसमें से वो लेते रहते हैं और काम को देते हैं, वो सारा जो रिसोर्स है वो काम में लगाते हैं। और एक दिन जब काम अचानक से बंद हो जाए या कुछ ऐसी बड़ी आपत्ति आ जाए, तो उनकी हेल्थ क्योंकि इतनी कमजोर हो चुकी है तो वो शॉक को झेल नहीं पाती। तो ये मुझे लगा कि अपने प्राइम में अगर कोई इंसान की डेथ हो जाए तो क्या हम उसको पहले बचा सकते थे, उसकी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के माध्यम से उसको बचा सकते थे क्या। और ये थॉट मेरे दिमाग में रहा, काफी देर तक रहा, और उसी से शायद धीरे धीरे करके सबकॉन्शियसली मैंने प्रिवेंशन की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो नेचुरली हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन के 2-3 स्तंभ होते हैं। जैसे सबसे पहले जो है उसका जो एक पिलर है वो है न्यूट्रिशन, यानी कि सही खाना पीना। दूसरा उसका स्तंभ है वो है एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस, एक्सरसाइज करना, फिजिकली अपने बॉडी को फिट रखना। और तीसरा है उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन और बाकी सारी चीजें। और इन्हीं 3 स्तंभों पे हमारा शरीर टिका हुआ है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी सोल है उसको कोई बड़े घर की जरूरत नहीं है और ना वो रह सकता है, उसको कोई बिल्डिंग में नहीं रह सकता, उसको रहने के लिए शरीर की जरूरत है। और शरीर जो स्वस्थ है वो उसके लिए सुंदर शरीर है, वो उसके लिए अच्छा घर है, उसके लिए ब्यूटीफुल हाउस है। और जो अस्वस्थ शरीर है उसके लिए वो एक ब्रोकन डाउन हाउस है, एक उसके लिए वो एक शैंटी है, एक स्लम है। तो किस तरीके से हम अपने घर को, अपने सोल की जो रहने की जगह है उसको अच्छा बनाएं, उसको सबसे फोर्टिफाई करें। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद कि एक 2 रेसिपीज जो आयुष डिपार्टमेंट ने एक रेसिपी शेयर करी और एक हमारे डॉक्टर्स ने बनाई है। तो सबसे पहले ये जो डिकॉक्शन की रेसिपी है ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इस डिकॉक्शन में, और डिकॉक्शन जैसे काढ़ा बनाते हैं, तो काढ़ा बनाने के लिए आप पानी लेंगे एक बर्तन, और उसमें थोड़ी दालचीनी डालेंगे जिसको सिनेमन कहते हैं, और 2 ग्राम के करीब अदरक डाल सकते हैं, क्रश्ड अदरक। एंड उसमें तुलसी के 5-6 पत्ते डालिए, काली मिर्च डालिए 5,
और उसमें फिर आप उसको मुनक्का डाल सकते हैं और इसको उबालिए। उसका जब थोड़ा सा काढ़ा बन जाए, डिकॉक्शन टाइप बन जाए, उसको गैस से उतार के और फिर उसमें थोड़ा गुड़ डाल के ये डिकॉक्शन आप दे सकते हैं, जो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन नहीं होने देगा। वायरस कैसे हमारे शरीर में आता है कि हमारे चारों तरफ करोड़ों वायरसेस हैं, करोड़ों बैक्टीरिया हैं और फंगस हैं, और ये हम इनहेल करते हैं, ये हम मतलब कंटिन्यूसली इनहेल कर रहे हैं, मगर हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे शरीर में एक शक्ति होती है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। वो इम्यून के छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जो जिनको आप कह सकते हैं कि वो हमारे सोल्जर्स हैं। और ये सोल्जर्स जो भी वायरस या बैक्टीरिया या कुछ फंगस अंदर आती है, उसको किल कर देते हैं, उसको मार देते हैं, और उसको फिर मार के उसको लिवर में डिस्ट्रॉय किया जाता है। और इस छोटे इम्यून सेल को भी अपने पोषण के लिए कई चीजें चाहिए। तो जो ये इम्यून सोल्जर है, इसके पोषण के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। दूसरी जो जूस की रेसिपी है, ये इम्यूनिटी बूस्टिंग हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने क्रिएट कर रही है। इसमें आप देखेंगे कि आंवला है, एक एप्पल है, और एक इंग्लिश में सेइंग है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, और हिंदी की सेइंग है एक अनार और 100 बीमार सही करता है। तो एप्पल अपने आप में बहुत अच्छा एक इम्यून बूस्टिंग फ्रूट है। और साथ में इसमें आप टमाटर डाल सकते हैं, चुकंदर डाल सकते हैं, बॉटल गोर्ड यानी लौकी डाल सकते हैं, सीजन में पंपकिन यानी कद्दू भी डाल सकते थे, बट अभी वो अवेलेबल नहीं है। और फिर थोड़ा सा पुदीना, फ्रेश पुदीना उसमें डाल सकते हैं, अदरक, थोड़ा सा काला नमक, और सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न एक बड़ा यूनिक सा बेर होता है, और ये भारत के हिमालयन एरिया में उगता है। और जो सी बकथॉर्न है, इसको कारगिल, लेह बेरी, लद्दाख बेरी, ये सब कहा जाता है। और हमारा जो डिफेंस का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने ये देखा कि जितने भी वहाँ के जो गांव के लोग हैं कारगिल में और लेह लद्दाख में, वो इस बेर को खाते हैं, और इस बेर को खाने से उनमें बीमारियां नहीं आती। तो रिसर्च करके देखा उन्होंने कि इस बेर की क्या खास बात है, जिसको लेह बेरी कहते हैं, हिमालयन बेरी कहते हैं, सी बकथॉर्न कहते हैं, कि इसमें जो इम्यूनिटी बढ़ाने की शक्ति कई गुना है। जैसे आंवला एक सुपर फूड है, वैसे सी बकथॉर्न एक सुपर फूड माना जाता है। और ये इनफैक्ट जो सन डैमेज भी होता है, जैसे हाई ऑल्टीट्यूड्स में सन की जो रोशनी बहुत तेज लगती है, तो उससे स्किन डैमेज और कैंसर्स भी होते हैं। तो ये कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है, ये सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं। तो ये इसलिए इस जूस में दिया गया है, और ये भारत में आराम से मिलता है, कई साइट्स पे मिलता है। इनफैक्ट हम भी इसको एक कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर कराते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही हमारे डॉक्टर्स को अच्छा लगा, तो इसलिए हमने भी इसको मैन्युफैक्चर कराना शुरू किया है। तो ये दो आपको रेसिपीज दी हैं, एक जूस है यानी इम्यूनिटी बूस्टिंग जूस, और एक काढ़ा है। ये दोनों रेसिपी अपने आप में बहुत पावरफुल है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आप में से कई हैं जिनके छोटे बच्चे होंगे, या जिनके जैसे टीनेज बच्चे भी होंगे, उनके लिए इधर रेसिपी नहीं है, तो इसलिए उस रेसिपी का मैं बताती हूँ कि उस केस में बच्चों के लिए आप जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा का जैसे 2 या 4 ग्राम, मतलब एक छोटा चम्मच से आधा या 1 चम्मच डिपेंडिंग ऑन द एज, उसको आप पानी में थोड़ा सा क्रश करके उसको आप शहद के साथ दे सकते हैं, या उसको दूध में उबाल सकते हैं, और उसके बाद जब ठंडा करके उसको शहद के साथ बच्चे को दे सकते हैं इम्यूनिटी के लिए। अश्वगंधा बहुत पावरफुल है। इसी तरीके से मुलेठी, बहुत पिंच, बहुत ज्यादा नहीं मुलेठी खानी चाहिए, क्योंकि फिर वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, बट एक पिंच मतलब 1-2 ग्राम मुलेठी, इसको भी आप क्रश करके शहद के साथ ले सकते हैं, और वो भी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाती है। इसी तरीके से बच्चों को फ्रूट्स देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे फ्रूट से कतराते हैं, भागते हैं, तो फ्रूट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जूस की जो रेसिपी है, ये थोड़ी मीठी होती है, मतलब इसका काफी स्वादिष्ट है, तो ये भी आपके बच्चों को आप दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक तो नींद पूरी होए, पानी काफी पिए वो, क्योंकि बच्चे भागते दौड़ते रहते हैं। इनफैक्ट गर्मी के मौसम में पानी अपने आप में एक मेडिसिन है, एक दवा है, और हमें 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए
स्पेशली राजकोट एरिया और काफी ड्राई एरिया है, तो दिल्ली भी काफी ड्राई है। तो पानी अपने आप में आप कह सकते हैं एक 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 दवा है अपने आप में, एक फूड है अपने आप में जो हमें एक एडिक्वेट क्वांटिटी में लेनी चाहिए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने में जब जैसे कि न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा रोल है, न्यूट्रिशन की जैसे कई डाइट प्लान्स भी हैं, तो इनफैक्ट हमारे पास काफी रिक्वेस्ट आई थी कि आप कोई डाइट प्लान हमें बताइए इम्यूनिटी के लिए। सो एक डाइट प्लान जो मैं आपको ऐप से पढ़ के बताऊंगी, और एक क्योंकि बहुत से रिक्वेस्ट आए थे तो हमने फ्री डाइट प्लान मोबाइल ऐप में डाले हैं जिसका नाम है वैदिक डाइट ऐप। सो ये आयुर्वेद पे आधारित है, और आयुर्वेद अपने आप में हम सब जानते हैं, हम इंडियंस की आयुर्वेद अपने आप में कितना पावरफुल है। और ये वैदिक डाइट ऐप में से ही मैं आपको रेसिपी पढ़ के बताऊंगी। तो ये डे 1 की रेसिपी है, आयुर्वेदिक डाइट ऐप अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और ये फ्री डाइट है बोथ एप्पल के लिए और एंड्रॉइड के लिए। सो ब्रेकफास्ट में जैसे आप ले सकते हैं मॉर्निंग में ये वेजिटेबल जूस, और सुबह अर्ली मॉर्निंग काढ़ा ले सकते हैं जो आपको दिखाया। फिर किनुआ ले सकते हैं। किनुआ अब हर जगह मिलता है, इनफैक्ट इंडिया में ये भारत में उगता भी है। पहले ये ब्राजील वगैरह से आता था, मगर अब कई सालों से ये भारत देश में किनुआ का जो ये अनाज है ये उगता है। और इसकी खासियत है कि ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटिक्स के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें कई मिनरल्स और प्रोटीन्स मौजूद हैं। सो आप ब्रेकफास्ट में एक दिन किनुआ ले सकते हैं, और वैसे ब्राउन राइस का पोहा भी बना के ले सकते हैं, ओट्स भी ले सकते हैं जिसको जवी कहते हैं। मिड मॉर्निंग में पपीते का एक बोल ले सकते हैं। पपाया की खास बात है कि उसके अंदर बीटा कैरोटीन है, और बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, यानी जब हम बीटा कैरोटीन खाते हैं शरीर में, हमारे शरीर में जाके वो विटामिन ए बनता है, क्योंकि हमारा शरीर विटामिन का निर्माण भी करता है। तो जैसे पपाया है या ऑरेंज, इस तरह की जो येलो और ऑरेंज फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है। सो पपीते का एक बोल आप सुबह ले सकते हैं। पपीते की खास बात ये है कि इसमें पैपेन एंजाइम है, और पैपेन जो है एक अपना एक पावरफुल एंजाइम है आपके इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो उनका एक बहुत सिंपल नुस्खा है, और वो नुस्खा है कि आप रॉ पपाया, यानी जो कच्चा पपीता होता है उसको घिस के, इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया में तो रॉ पपाया सैलेड बहुत शौक से लोग खाते हैं। तो जो रॉ पपाया है, थोड़ा सा जो कच्चा पपीता है उसको घिस के, उसको कद्दूकस करके, फिर उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, थोड़ा सा भुनी हुई मूंगफली डाल सकते हैं, और वो बहुत अच्छा सैलेड बनता है और कॉन्स्टिपेशन के लिए एक रामबाण की तरह काम करता है। फिर आप लंच में जैसे बारले यानी जौ की चपाती ले सकते हैं। जौ हमारे देश में तो बहुत पॉपुलर है, मुझे पता नहीं कि राजकोट एरिया में, उस एरिया में जौ मिलता है कि नहीं, मगर नॉर्थ इंडिया में जौ का सत्तू और चने का सत्तू बहुत ही पॉपुलर है, खास की गर्मी के मौसम में, क्योंकि ये जौ का सत्तू पेट को बहुत ठंडा रखता है और किडनी को बहुत ठंडा रखता है। तो जौ के सत्तू की चपाती ले सकते हैं, और साथ में जैसे दाल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सी सब्जियां आप मार्केट में आपको मिलती हैं, और कोई भी सब्जी जो आपको पसंद हो, बीन्स हैं या भिंडी है, तोरी है, जो भी आपको पसंद हो। नॉर्मली क्या था कि जब मैं मेडिसिन जब मैं एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रही थी LNJP में, उस समय डाइटिशियन सबको बॉयल लौकी और बॉयल तोरी खिलाते थे। तो मैंने रियलाइज किया कि जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है या जिसको नमक कम करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, उसको हर चीज बॉइल्ड फॉर्म में क्यों दी जाए। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि आपको बॉइल्ड खाना खाना है, क्योंकि टेस्टी खाना खाने से भी हेल्थ बनती है। हाँ, ये जरूर है कि आप उसको फ्राई मत ज्यादा कीजिए, उसमें ऑयल को रीयूज मत कीजिए, बार बार रीफ्राई मत कीजिए, मगर स्वादिष्ट खाना खाना अपने आप में एक हीलिंग है। बिकॉज हम खाने के न्यूट्रिटिव वैल्यू को और साथ में उसका फ्लेवर और उसका टेस्ट अगर बढ़िया से बनाए तो उसको और अच्छे से शौक से हम खा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे उस एरिया में आपको मूंगफली बहुत मिलती होगी, और मूंगफली भी एक अच्छा स्नैक है। कई लोगों को पूछते हैं मेरे से कि जी मूंगफली में तो तेल है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो ये अपने आप में एक मिथ है, ये सही नहीं है।
क्योंकि एक भ्रम है, क्योंकि मूंगफली में या कोई भी जो वेजिटेरियन चीज है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ पशु से आता है या नॉन वेजिटेरियन सोर्स से आता है। तो जैसे दूध है वो पशु से होता है एंड वो उसमें कोलेस्ट्रॉल है, दही में कोलेस्ट्रॉल है, घी में कोलेस्ट्रॉल है, एग में कोलेस्ट्रॉल है। मगर कोई भी चीज जो प्लांट से आती है उसमें नेचुरल नेचर से ही कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो उसको आप आराम से खा सकते हैं। तो ये जैसे ही आप वैदिक ऐप डाउनलोड करेंगे, इनफैक्ट अगर आप लोगों के पास अभी इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होगा और फोन एक्टिव होगा, तो आप डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रकृति को एनालाइज कीजिए। फिर मैं आपको प्रकृति के अकॉर्डिंग टू आपकी प्रकृति में आपको टिप्स दे सकती हूँ। वैसे अब मैं थोड़ा सा आपको प्रकृति के बारे में बताना चाहती हूँ कि फंडामेंटली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रकृतिज। द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रकृति इज वाता, जिसको हम एयर प्रकृति भी कहते हैं लेमैन टर्म्स में। द सेकंड काइंड ऑफ प्रकृति इज पित्त, जिसको हम फायर प्रकृति भी कहते हैं। एंड द थर्ड काइंड ऑफ प्रकृति इज कफ, जिसको हम अर्थ वाटर प्रकृति कहते हैं। अब इन तीनों में फर्क क्या है? सबसे पहले ये प्रकृति में मैं कैसे आई, क्योंकि जब हम अपने आयुर्वेद की बात करते हैं और मॉडर्न न्यूट्रिशन की बात करते हैं, दोनों में अंतर ये है कि मॉडर्न न्यूट्रिशन सिर्फ कैलोरी के बेसिस पे आपको ज्ञान देता है, एडवाइस देता है, सजेस्ट करता है। मगर आयुर्वेद आपकी बॉडी टाइप, आपकी जेनेटिक टाइप, आपकी अपनी जो प्रकृति है उसके बेसिस पे एडवाइस देता है। तो कोई भी फूड, जैसे हम दूध ले लेते हैं, अगर आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास पूछेंगे कि मैं दूध मुझे पीना चाहिए कि नहीं, तो वो कहेंगे कि पहले आपकी मैं प्रकृति डायग्नोस करूंगा कि आप वात प्रकृति की हैं, कि पित्त हैं, कि कफ हैं। अगर आप वेस्टर्न न्यूट्रिशनिस्ट से पूछेंगी तो वो कहेंगे हाँ आप पीजिए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नहीं है तो आप फुल क्रीम दूध ले सकते हैं। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है या आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप टोन दूध दीजिए या फैट फ्री दूध दीजिए। तो उनकी एडवाइजरी में सिर्फ यही चीजें देखी जाती है। मगर आयुर्वेद आचार्य से अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे आपकी अगर प्रकृति वात है तो आप दूध दही जरूर लीजिए और फुल क्रीम भी लीजिए, क्योंकि आपकी प्रकृति जो है वो ड्राई प्रकृति है, उसमें आपको थोड़ी सी जो ऑयल वाली चीजें हैं उसकी आवश्यकता है। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको कहेंगे कि दूध ज्यादा मत लीजिए, आप छाछ लीजिए, दही लीजिए और इस तरह की चीजें ज्यादा लीजिए, क्योंकि आपकी प्रकृति में फायर ज्यादा है। और अगर आपकी प्रकृति कफ है तो फिर आपको शायद दोनों चीजें मना हो जाए। और खासकर कफ प्रकृति में दही तो बिल्कुल रात के समय लेने से मना होती है, क्योंकि रात का समय कफ होता है। तो एक और आपको एग्जांपल देती हूँ कि आयुर्वेद में जो प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न जो लेटेस्ट मेडिसिन में जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मेल खाता है और जो ब्लड ग्रुप के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मेल खाता है। जो आजकल जो मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड में न्यूट्रिशन आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर के हिसाब से बताई जाती है कि आपकी जो दवाइयां भी है जिसको फार्माकोजेनेटिक्स कहते हैं और न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स है, इसमें क्या कहा जाता है कि आपकी जेनेटिक्स के हिसाब से अगर आप खाएंगे तो आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। अगर आप जेनेटिक्स के विपरीत खाएंगे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आयुर्वेद में उन्होंने आइडेंटिफाई करी थी पुराने ऋषि मुनियों ने कि आपके बॉडी का एक प्रकृति होती है, एक एनर्जी टाइप कह सकते हैं, जैसे वात पित्त एंड कफ। एटमॉस्फेयर में यानी कि जो वेदर है उसमें भी वात पित्त एंड कफ होती है, यानी समर पित्त है, विंटर कफ है और चेंज ऑफ सीजन वात है। आपके खाने में भी एनर्जी होती है, जैसे वात प्रकृति के खाने कौन से हैं, जैसे चना है जिसमें गैस है ज्यादा, बीन्स हैं। पित्त प्रकृति के फूड कौन से हैं, जैसे अंडा है, तला हुआ खाना है, अचार है, नॉन वेजिटेरियन फूड है। फिश की जो प्रकृति बहुत हाई पित्त मानी जाती है, इट इज हाई इन पित्त यानी फायर एलिमेंट। एंड जो कफ प्रकृति के फूड्स हैं वो जैसे चावल है, जैसे केला है, दही है, स्पेशली फुल क्रीम दही, तो ये कफ प्रकृति मानी जाती है। तो इनका असर क्या होता है? इनका असर भी मिलजुल के होता है। जैसे अगर आप समर सीजन में अगर कोई पित्त प्रकृति का इंसान
पित्त समय में यानी कि आफ्टरनून में जो जिसमें पित्त बढ़ा होता है उसमें कोई पित्तज चीज खाए जैसे अंडा खाए तो उसको पित्त यानी रिएक्शन बॉडी में रैशेस आ सकते हैं। तो वो कोरिलेट होता है कि यानी सीजन क्या है, खाना खाने में क्या प्रकृति है, जो इंसान खा रहा है उसकी क्या प्रकृति है और समय क्या क्या है। तो ये इतना जो साइंटिफिक कोरिलेशन है उससे आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेदा कितना अपने समय में और आज भी कितना रेलेवेंट है, कितना साइंटिफिक और कितना प्रैक्टिकल था। तो जो लोग वात प्रकृति में थोड़ा सा आपको जो लोग जो कुछ अपना आपने अगर ऐप डाउनलोड करी होगी तो शायद आपको प्रकृति पता भी चली होगी। तो वात प्रकृति में जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो होता है थोड़ा सा स्मॉल स्ट्रक्चर, यानी बोन स्ट्रक्चर, रिस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा स्मॉल होता है। उनका स्किन थोड़ा ड्राई होता है और माइंड बहुत फास्ट मूव करता है। तो नॉर्मली जर्नलिस्ट हैं या जो लोग टेक्नोलॉजी में होते हैं वो उनमें वात की जो एलिमेंट है प्रकृति का पाया जाता है ज्यादा। वात प्रकृति में नॉर्मली जो खाने पीने में आपको ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ऑयल फ्री डाइट ना करें क्योंकि इससे वात प्रकृति इम्बैलेंस होती है। इसी तरह से अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और समय पे नहीं खाना खा रहे हैं, आपका रूटीन सही से सेट नहीं है, तो वात प्रकृति इम्बैलेंस होती है। सबसे ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस वात प्रकृति में देखा गया है। और जो डिसऑर्डर्स वात प्रकृति में ज्यादा देखते हैं वो होते हैं नर्व्स के यानी नसों के डिसऑर्डर्स, जैसे हाथ पैर जलना, एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद नहीं आना, इंसोम्निया। तो इस तरह की चीजें और साथ में दर्दें लाइक शरीर में दर्द, घुटनों में दर्द, बैक में दर्द, मसल्स में दर्द और हेडेक, तो ये वात प्रकृति में ज्यादा देखा जाता है। फिर दूसरी प्रकृति है जो पित्त प्रधान है यानी डोमिनेंट इन पित्त। तो जो पित्त प्रधान प्रकृति है उसमें देखा जाता है कि उनका बॉडी टाइप थोड़ा सा मीडियम साइज का रहता है, बोन स्ट्रक्चर भी थोड़ा मीडियम है, बहुत स्मॉल नहीं है, और इनकी स्किन ऑयली है, हेयर ऑयली है। एंड पित्त प्रकृति में जो एसिडिक ज्यादा शरीर हो जाता है, बहुत जल्दी एसिडिक होता है। और एसिडिक शरीर के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हैं जैसे कि अल्सर है, फाइब्रॉइड्स हैं लेडीज में, फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स जिसको GERD GERD सिंड्रोम कहते हैं, साथ ही में जैसे कि हेयर फॉल है, डैंड्रफ है। तो पित्त प्रकृति में गुस्सा भी ज्यादा होता है, यानी कि पित्त प्रकृति में जो स्ट्रेंथ है वो है उनका स्टेमिना अच्छा है, उनमें डिटर्मिनेशन है, फोकस है। मगर जो नेगेटिव क्वालिटी है कि उनका गुस्सा तेज होता है और उनमें एसिडिटी और एसिडिक बॉडी बड़ी जल्दी होती है, यानी कि हार्ट अटैक्स आमतौर पे देखा गया है कि पित्त कफ कॉम्बिनेशन प्रकृति में ज्यादा देखे गए हैं। एंजाइटी अटैक्स वात प्रकृति में देखा गया है। सो पित्त प्रकृति को नेचुरली जो डाइट फॉलो करनी चाहिए उसमें अल्कलाइन डाइट, और ये नेचुरोपैथी का भी कॉन्सेप्ट है और आयुर्वेद का भी कॉन्सेप्ट है कि पित्त प्रकृति के लोगों को ज्यादा सब्जियां, फल और ये सब्जियों का रस, सैलेड, ये इस तरह की चीजें उनको ज्यादा फॉलो करनी चाहिए क्योंकि इन्हीं चीजों से उनकी प्रकृति में एक बैलेंस आता है। देन कफ प्रकृति की अगर हम लोगों को देखें तो कफ प्रकृति के जो लोग हैं उनका थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा होता है, थोड़ा वाइड होता है, वाइड बोन्स हैं, वाइड शोल्डर्स हैं, एंड उनमें उनका स्किन बहुत अच्छा होता है, बाल घने होते हैं, मगर उनका वजन बहुत जल्दी से बढ़ता है बिकॉज इस प्रकृति में वाटर और अर्थ एलिमेंट काफी है। अब इस प्रकृति की खासियत है कि इनका स्टैमिना सबसे ज्यादा है, एंड्योरेंस सबसे ज्यादा है, और जो उनमें और नेचर इनकी बहुत काम होती है, बहुत शांत नेचर होती है, स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। सो जो कफ प्रकृति का मगर जो नेगेटिव साइड है वो है कि इनमें स्वेलिंग जल्दी आती है, वाटर रिटेंशन जल्दी आता है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने से डायबिटीज की तरफ उनका बॉडी टाइप जाता है। तो एक तो डायबिटीज, एक ओबेसिटी और इस तरह की चीजें उनमें ज्यादा देखी गई हैं। तो जो कफ और प्रधान लोग हैं जिनकी शरीर में कफ प्रधान एनर्जी है उनको वो चीजें नहीं खानी चाहिए जिसमें अपने आप में कफ और अर्थ ज्यादा है। और ये कौन सी चीजें हैं, जैसे कि अनाज, बहुत ज्यादा अनाज उनको नहीं खाना चाहिए, जैसे गेहूं का अनाज, मीठा अनाज जिसको कहते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है। तो क्या खाना चाहिए, आप सोच रहे होंगे कि फिर खाएंगी क्या।
तो जो कम शुगर के अनाज हैं, जैसे मिक्स चने की रोटी है, बार्ले है, ओट्स है, किनवा है, और इनफैक्ट इनको सैलेड ज्यादा खाना चाहिए और सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, फ्रूट भी इनको खाना चाहिए मगर बैलेंस में। यानी कि कुछ लोगों को अगर जैसे ग्रेप्स पसंद है तो फिर वो ग्रेप्स ही खाते रहते हैं या केला ही खाते रहते हैं। तो थोड़ा सा वैरायटी, जैसे फॉर एग्जांपल मंडे आपने ग्रेप्स खा लिया, केला खा लिया, ट्यूसडे वाटरमेलन खाया, फिर वेडनेसडे आपने अनार खाया या कोई इस तरह से बेर खाए। तो इस तरीके से हर दिन जो पूरे रेनबो कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो, तो वो सारे कलर्स अगर आप अपनी डाइट में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो मल्टीविटामिन्स हैं जो आपकी डाइट में होने चाहिए मौजूद, वो आपको मिलेंगे। इससे एक थोड़ा सा कनेक्शन आता है कि आपको अपने स्किन के लिए, बिकॉज काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर जी आप बताइए कि आपकी स्किन हम अपना कैसे अच्छा रखें। सो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि आपको कुछ मिनरल्स खाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिंक। अब जिंक आपको जैसे दलिया है या फ्लैक्स सीड्स हैं, इसको अलसी का दाना बोलते हैं, तिल का दाना है, या फिर सनफ्लावर सीड्स हैं। तो यानी अलग अलग जो सीड्स हैं उनमें जिंक मौजूद होता है। होल ग्रेन यानी मोटे अनाज में जैसे दलिया है, उसमें ये सारे विटामिन, जिंक और मिनरल्स, जिंक है, सेलेनियम है। जैसे सेलेनियम आपका बार्ले में भी होता है, तो वो आप ले सकते हैं। फिर कैल्शियम मैग्नीशियम आपको पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। आपको कैल्शियम मैग्नीशियम तिल से भी, कैल्शियम तिल में कैल्शियम बहुत है। फिर इस तरह से आप अलग अलग ग्रेन्स अगर खाएं, जैसे कि रागी है। अब रागी का जो अनाज है बहुत अच्छा है, और साउथ में, मध्य प्रदेश में रागी बच्चों को दिया जाता है एज अ वीनिंग फूड, क्योंकि उसमें कैल्शियम बहुत अच्छा है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को कई बार खूब चीनी देते हैं, और ये अपने आप में गलत है, क्योंकि चीनी से जो बॉडी है वो एसिड बन जाएगी, और जैसी बॉडी में एसिड बनेगा तो सबसे पहले उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि नेचुरली शरीर के सारे चीजें स्टॉप हो जाएंगी अगर एसिड बढ़ेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी हड्डियों से, आपके बोन से कैल्शियम निकालना शुरू करती है। इसीलिए कई लोग कहते हैं अरे मैंने तो कैल्शियम में खाता हूँ, या मैं अपने फैमिली में भी, मेरी लेडीज फैमिली में बच्चे 5 खाती हैं, तो कैसे हो गया इनको ऑस्टियोपोरोसिस? तो क्योंकि चीनी ज्यादा खाया जा रहा है, क्योंकि चीनी अपने आप में कैल्शियम की चोरी करता है उसको। इट्स अ थीफ, इट्स अ कैल्शियम थीफ, और वो आपकी बॉडी से कैल्शियम को निकालता रहता है। एंड इनफैक्ट उसका साइड इफेक्ट ये भी है कि जितना जितना फिर अब कैल्शियम निकलेगा तो कहीं ना कहीं स्टोन भी फॉर्म होगा। तो इसलिए शुगर एक लिमिट में खाना चाहिए, और इनफैक्ट कोशिश करना चाहिए कि 5 साल तक बच्चों को शुगर ना दिया जाए, और फिर एट द एज ऑफ 45 आप अपना शुगर बंद करके सिर्फ नेचुरल शुगर लीजिए, जैसे फ्रूट्स में है, या जैसे कभी गुड़ ले लिया। तो इस तरह की जो शुगर है वो हार्मफुल नहीं है, बट जो वाइट चीनी है वो बहुत हार्मफुल अपने आप में है। सो ये कुछ आपके ये टिप्स इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक आई सेड 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, बिकॉज वो आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा और आपकी बॉडी को अल्कलाइन रखेगा। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और आई थिंक इफ यू वांट आई कैन टेक क्वेश्चंस नाउ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके सवालों का मैं जवाब दूं, क्योंकि आयुर्वेद अपने आप में इतना बड़ा है, इतना बहुत बड़ी साइंस है कि उसके बारे में तो मैं घंटों बात कर सकती हूँ। Definitely, ma'am. We can start taking questions. The first question that we have received is regarding hair health. How can we? What are the dietary, advisory for stopping hair fall? देखिए, हेयर फॉल के कई कारण हैं। पहला कारण है कि आपके हो सकता है प्रोटीन आपकी डाइट में कमी हो। तो प्रोटीन वेजिटेरियंस के लिए जैसे स्प्राउट्स हैं, या जैसे बादाम है, और स्प्राउटेड किसी भी दाल को स्प्राउट करके खा सकते हैं, जैसे मूंग दाल है या चना दाल है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर आप एग खा सकते हैं, नॉन वेज खा सकते हैं। मगर अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं तो वेजिटेबल जूस जरूर लीजिए अपनी डाइट में, ताकि आपकी बॉडी में एसिड ना बने, क्योंकि एसिड अपने आप में प्रॉब्लम करता है। सेकेंड चीज इज कि आपको जिंक आपकी डाइट में होना चाहिए, और जिंक सप्लीमेंट भी दिया जाता है अगर हेयर फॉल ज्यादा है। थर्ड थिंग इज कि आपकी जो स्कैल्प है
वो अल्कलाइन होना चाहिए। तो जैसे कोई भी ऑयल, खासकर जैसे कोकोनट ऑयल है, उसमें थोड़ा त्रिफला पाउडर डाल के आप उसको मिला के उसमें उसकी हेड मसाज कर सकते हैं ताकि स्कैल्प ठंडा रहे। और उसको क्लीन रखना है, बिकॉज कई बार अगर स्कैल्प में ऑयल ज्यादा आ जाए, सीबम जिसको कहते हैं, और एसिडिक बन जाता है तो हेयर फॉल होता है। सो यू नीड आयरन ऑल्सो। तो आयरन के अच्छे सोर्सेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक है, मेथी है, और इस तरह की। देन मेथी सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स, ये अपने आप में बहुत अच्छे हैं डायबिटीज के लिए भी और हेयर के लिए भी। तो उसको भी आप ले सकते हैं, आधा चम्मच स्प्राउटेड मेथी सीड्स भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा कि जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, जैसे कि बादाम है, या जैसे आप ऑलिव ऑयल है, कच्ची खाने के ऑयल्स इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा रिफाइंड ऑयल मत खाइए और ज्यादा तला हुआ मत खाइए, बिकॉज इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एसिड होना शुरू होता है। सो बेसिकली आयरन, बी कॉम्प्लेक्स जो फ्रूट से मिलेगा आपको, देन जिंक, देन सेलेनियम एंड मैग्नीशियम जो आपको मल्टी मिनरल टैबलेट ले सकते हैं, या जैसे डिफरेंट डिफरेंट सीड्स खा सकते हैं, एसेंशियल ऑयल्स जो आपको डिफरेंट डिफरेंट सीड से मिल जाते हैं, एंड प्रोटीन। अगर ये सारी आप चीजें शुरू करें, एंड साथ में ऑफ कोर्स स्ट्रेस, तो स्ट्रेस you have to manage, and pranayam is a very good way to manage stress. Yes, ma'am. So there was one question around dietary advice for cough and pitta prakriti. So if you can just give some some advice on that, that'll be great. So in पित्त, देखिए पित्त प्रकृति और स्पेशली ये जो समर का महीना है सबसे पित्त के लिए खराब सीजन है, क्योंकि सबसे ज्यादा पित्त के डिसऑर्डर इसी सीजन में शुरू होते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको पानी पीना है, 2-3 ग्लास, और सादा पानी। और उसके बाद फिर आप अपना ग्रीन टी ले सकते हैं, जैसे तुलसी है, और अदरक तुलसी की ग्रीन टी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप नॉर्मल चाय वगैरह ले लीजिए, और एक बोल फ्रूट जरूर लेना है आपको नाश्ते से पहले, एक बिग बोल ऑफ फ्रूट लेना है। उसके बाद नाश्ते में कोई भी चीज आप खा सकते हैं, जैसे आप पोहा लेते हैं, इडली लेते हैं, वो सब आप ले सकते हैं। और फिर लंच के समय बारले की रोटी लीजिए, बारले पेट को ठंडा रखता है, और सब्जी दाल वगैरह ले सकते हैं, एंड एक बोल सैलेड। फिर शाम के समय अगर आप चाय ले रहे हैं चाय लीजिए, वरना छाछ ले सकते हैं। नॉर्मली छाछ अगर थोड़ा सा रुक के ले, खाने के साथ ना ले, तो उसका ज्यादा फायदा होता है, बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट खाने के साथ में उतना फायदा नहीं करता जितना वो अपने आप एज अ एक्सक्लूसिव चीज ज्यादा फायदा करता है। उसमें आप थोड़ा सा भुना जीरा वगैरह भी डाल सकते हैं डाइजेशन के लिए। और फिर शाम के समय ऑफ कोर्स फिर आप वाटरमेलन, मतलब इन द सेंस कि अगर आप सपोज 4-5 बजे तक वाटरमेलन खाएं, वो भी अच्छा है आपकी। अदरवाइज वाटरमेलन सुबह भी खा सकते हैं, नाश्ते में बहुत अच्छा वाटरमेलन। एक खास चीज जो वाटरमेलन के लिए है, वो कभी उसको किसी के साथ जोड़े ना, मतलब वाटरमेलन शुड बी ईटन अलोन, उसके साथ एप्पल और ऑरेंज या कोई खाना या दूध दही ऐसी कुछ चीज ना खाएं। 20 मिनट का गैप रखें, बिकॉज अदरवाइज आयुर्वेद का मानना है कि अगर आप मेलन यानी खरबूज और तरबूज किसी के साथ मिलाएंगे तो उससे टॉक्सिन शरीर में बनते हैं। कफ के लिए फाइबर बहुत जरूरी है, जैसे चोकर। आजकल मॉडर्न जमाने में हम फाइबर चोकर को फेंक देते हैं और सही समझते हैं। इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि एक हमारे घर में एक स्टाफ होती थी, तो वो चोकर को फेंकती थी। वो कहती थी, दीदी ये तो हमारे गांव में क्या गाय बकरी वगैरह, गाय और भैंस को खिलाते हैं। तो वही चीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चोकर के अंदर विटामिन है, मिनरल है। उसको हम फेंक देते हैं समझ के तो बेकार है, और हम महीन अनाज खाते हैं, मतलब मैदा है, सूजी है, और जिसकी वजह से आज की डेट में डायबिटीज इंडिया में इतनी फैली हुई है। तो चोकर इम्पोर्टेंट है स्पेशली कफ प्रकृति के लिए। और साथ में जैसे कि ओट्स है, और ओट्स का आटा अगर आप खाएं या नाश्ते में ओट्स खाएं तो अच्छा है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जी कॉर्नफ्लेक्स कैसा है, तो कॉर्नफ्लेक्स नहीं अच्छा। अगर आपको भुट्टा पसंद है भुट्टा खाइए, अगर आपको बॉईल करके कॉर्न पसंद है बॉइल्ड भुट्टा खाइए या बॉइल्ड कॉर्न खाइए, मगर कॉर्नफ्लेक्स मत खाइए, बिकॉज उसका जो शुगर इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है। Yes, ma'am. Which brings us to the next question. So nowadays, vegetables are carriers of coronavirus. So
can you suggest some methods to either wash it, and what will be the effect if we stop eating it for 10 days and go on a cereal diet? आई वुड सजेस्ट, देखिए पहली बात तो कोई भी वायरस हीट से मर जाता है, तो जब आप सब्जियों को धोते हैं, वैसे तो एक और तरीका है कि आप जो बेकिंग सोडा है उसको एक बड़े बर्तन में डाल के 1 चम्मच बेकिंग सोडा उसको घोल लीजिए और उसमें से सब्जी एक बार वॉश कर लीजिए आप, और फिर उसको रिंस कर लीजिए, तो वो अपने आप, स्पेशली सैलेड वाला जो, क्योंकि उसका छिलका है, तो उसको सैलेड को आराम से उसमें से वॉश करके उसके बाद छिलका हटा के आप सैलेड खा सकते हैं। सब्जी तो आप कुक कर रहे हैं, तो किसी भी कुक चीज में वायरस टिक ही नहीं सकता, तो वायरस तो हीट से एकदम खत्म हो जाता है, तो उसमें कोई चिंता नहीं है। आप उसको क्योंकि पका के खा रहे हैं सब्जी को, उसमें कोई चिंता नहीं है। हाँ, सैलेड या जो जूस मैंने आपको रेसिपी बताई, उसको जब आप वॉश करेंगे, उसको ढंग से आप वॉश कीजिए, और बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 चम्मच पानी में उसको थोड़ी देर रख के फिर उसको एक चलते पानी में रिंस करके फिर उसकी आप जूस बना सकते हैं, तो उसमें आपको कोई भी वायरस की प्रॉब्लम नहीं होगी। Yes, ma'am. Also, there was a question on advice for acid reflux. So, if you can help with that, that'll be great. सो एसिड रिफ्लेक्स, तो इसको टेक्निकली हम मेडिसिन में कहते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स और रिफ्लक्स। तो ये रिफ्लक्स जो होता है, बेसिकली क्या होता है कि आपके पेट में बहुत एसिड होता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट करता है आपके खाने, और एक शायद पेट का ही एसिड है जो शरीर के लिए हेल्दी है, और बाकी कहीं एसिड नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है कि जब हम हमारा जो पेट है और ऊपर जो पाइप है, इसके बीच में एक वॉल्व होता है जो उसको बंद रखता है, और जब खाना आप खाते हैं तो वो वॉल्व खुलता है और खाने को अलाउ करता है पेट तक जाना। जब ये वॉल्व में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, चाहे वो गैस भरी हो उसकी वजह से, या स्ट्रेस की वजह से, या आप ओवर ईटिंग करते हैं उसकी वजह से, तो जो पेट का एसिड है जो पेट में रहना चाहिए, और पेट का एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, इट्स वेरी वेरी पावरफुल एसिड। तो और पेट इसलिए, जो उसकी अंदर की जो लाइनिंग है, पेट की लाइनिंग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनिंग होती है, यानी कि वो एसिड को होल्ड करती है, एक कंटेनर, एक पतीले की तरह वो एसिड को अपने अंदर रखती है। तो पेट की लाइनिंग का अलग स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनिंग होती है। जब ये एसिड जो ईसोफेगस और पेट के बीच में जो एक वॉल्व है उसके थ्रू ऊपर आ जाए, छलक के ऊपर आ जाए, तो जो ईसोफेगस है उस ट्यूब में वो स्ट्रॉन्ग लाइनिंग नहीं होती, उस ट्यूब की कवरिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती उस ट्यूब की, तो वो एकदम जलना शुरू हो जाता है, जिसको आप एसिडिटी कहते हैं। कि पेट का एसिड पेट में रहे तो जलेगा नहीं, पर जैसे ही वो खाने की ट्यूब में आ जाए तो वो जलना शुरू होता है। तो इसकी 2-3 तरीके हैं। एक तो आप जब वो एसिडिटी का अटैक हो तो आप या तो ठंडा केला खा सकते हैं फ्रिज में रखा हुआ, या एलोवेरा का रस पी सकते हैं, जो अपने आप में बहुत पावरफुल है एसिडिटी को दबाने के लिए और एसिडिटी को ट्रीटमेंट देने के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट उसका है कि सबसे पहले आपको जो आपको एक तो पहले तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि आपका जो पेट की मसल स्ट्रांग हो और वो ऊपर ना थ्रो करे। फिर जो गैसी फूड है, यानी कि जैसे कई बार लोग बहुत तला हुआ खाते हैं, तो तले हुए का मतलब है कि आपके पेट में तला हुआ खाना गया और आपकी आपके जो स्टमक के और इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया है वो रिएक्ट करना शुरू कर जाते हैं। और हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया जो हमें B12 बनाते हैं, और बैड बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन देते हैं। तो जब ये हम बहुत तला हुआ खाना खाते हैं, रोज खाते हैं, तो जो गुड बैक्टीरिया मरने शुरू हो जाते हैं और वो फर्मेंट पूरा करके ऊपर जो आता है तो वो गैस आती है। तो इसीलिए जो भी कोई इंडाइजेशन है वो बेसिकली आपका शरीर कह रहा है कि ये मुझे नहीं चाहिए खाना, और हम उसको स्वाद के लिए खा रहे हैं, और कई बार ज्यादा खा रहे हैं, या गलत समय पे खा रहे हैं, या गलत कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, तो उससे ये एसिडिटी होती है। तो एक तो पानी आपको खूब पीना चाहिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि आपकी स्टमक की मसल स्ट्रांग होनी शुरू हो जाए, वो रिफ्लक्स ना भेजें। आपको गैस वाली चीजें कम खानी चाहिए, तला हुआ कुछ समय के लिए बंद करना चाहिए, और एलोवेरा जूस और त्रिफला लेना चाहिए। त्रिफला आप रात के सोते समय पानी में त्रिफला 1 चम्मच लेंगे, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी गुड बैक्टीरिया इंप्रूव होंगे, आपकी बॉडी अल्कलाइन होगी। और एक प्रोबायोटिक लेना चाहिए, तो प्रोबायोटिक के कैप्सूल भी आते हैं, और वैसे तो दही भी प्रोबायोटिक है अपने आप में, उसमें भी गुड बैक्टीरिया होते हैं। Yes, ma'am. So the next question was, how can patients suffering from muscular dystrophy take
from a good diet? देखिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी में सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज अ अननेचुरल सिचुएशन। नॉर्मली हमारे मसल्स में क्या होता है, हमारे मसल टूटता है, हमारे जैसे बोन्स में सेल्स टूटते हैं, इंटेस्टाइन में सेल्स टूटते हैं और फिर वो रीजेनरेट होते हैं, यानी कि ये ब्रेकडाउन और रीजेनरेशन साइकिल की तरह चलता रहता है। ब्रेकडाउन हुआ फिर रीजेनरेशन साथ साथ चल रहा है, ब्रेकडाउन रीजेनरेशन। किसी भी डिस्ट्रोफी में ब्रेकडाउन तो चल रहा है, रीजेनरेशन नहीं चल रहा। तो ब्रेकडाउन तो एक नेचुरल चीज है, बट रीजेनरेशन अगर ना हो तो फिर वो अननेचुरल हो जाती है, जिसको डिस्ट्रोफी कहते हैं। तो डिस्ट्रोफी में सबसे पहले आपको डिटॉक्सिफाई करना है अपना लिवर, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके बॉडी में इम्बैलेंस आ गया है, जिसकी वजह से बॉडी रीजेनरेट नहीं कर रही अपने आप, मसल रीजेनरेट नहीं कर रही। तो डिटॉक्सिफाई में दो तीन तरीके हैं। एक डिटॉक्सिफिकेशन का मेथड आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, विच इज थेरेपेटिक डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि गाइडेड डिटॉक्सिफिकेशन है, जिसमें हम कई हर्ब्स यूज करते हैं, कई इस तरह के सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, जो कि हम आपको एक गाइडेड डिटॉक्सिफिकेशन। बट फिलहाल मैं आपको घरेलू डिटॉक्सिफिकेशन बताती हूँ, जो आप घरों में बैठ के कर सकते हैं। तो एक पानी 2 लीटर का पानी लीजिए, उसमें मेथी के सीड्स डालिए 1 चम्मच, एंड उसमें क्यूमिन, भुना हुआ जीरा या जस्ट प्लेन जीरा आप डाल दीजिए, प्लेन जीरा नॉट भुना हुआ, और इसको आप रखिए ओवरनाइट और अगले दिन ये पानी पीजिए। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन वाटर है। और फिर रात के समय वो आप 1 चम्मच खा सकते हैं मिक्स्ड मेथी और जीरे का जो सीड्स हैं। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन है कि 2 लीटर पानी में आप जो मौसम्बी के 2-3 स्लाइसेस डाल दीजिए, उसमें आप तुलसी डालिए, उसमें आप मिंट, पुदीने के पत्ते डालिए, एंड इसके अंदर आप थोड़ा सा गिलोय डालिए, गिलोय का पाउडर, और ये आप रखिए और ओवरनाइट, और नेक्स्ट मॉर्निंग इसको आप पीना शुरू कीजिए। तो ये भी डिटॉक्स वाटर है, बिकॉज गिलोय आपकी बॉडी को क्लीन करना शुरू करेगा, आपके लिवर को क्लीन करेगा। और गिलोय आई थिंक आप सब जानते ही होंगे, तो बहुत कॉमन इंडियन हर्ब है, तो ये भी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। फिर ये जब डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए तो उसके बाद नरिशमेंट का फेज आता है। तो नरिशमेंट में एक तो आई वुड सजेस्ट कि 2-3 महीने आप वेजिटेरियन हो जाइए, और तला हुआ खाना मत खाइए। जो ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे, या तो घी यूज कीजिए, या तो कच्ची घानी का जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं, ऑर्गेनिक, वो भी रिफाइंड ज्यादा नहीं, ऑर्गेनिक ऑयल आप इस्तेमाल कीजिए। तो इसमें आपकी जो बॉडी की जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो आपके रिप्लेस होंगे बाय हेल्दी ऑयल्स, और हेल्दी ऑयल्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स आपकी धीरे धीरे मसल्स को रिजेनरेट कराएंगे। फिर आपकी डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, और प्रोटीन वीगन प्रोटीन हो, जैसे आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, और आप जैसे बादाम है वो ले सकते हैं। तो इस तरह की जो वेजिटेरियन प्रोटीन है वो ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। अगर आपको सोया से कोई तकलीफ नहीं हो, एलर्जी ना हो, तो आप सोया भी ले सकते हैं, बट अगर है तो अदरवाइज आप बाकी वेजिटेरियन प्रोटीन ले सकते हैं। तो प्रोटीन्स की आपको मात्रा बढ़ानी होगी, और साथ साथ में जैसे मल्टीविटामिन, जैसे विटामिन B12 है, वो आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, जिंक के सप्लीमेंट लेने होंगे। तो ये धीरे धीरे करके आपकी जो बॉडी है वो रिजेनरेशन मोड में चली जाएगी, और फिर जो डिस्ट्रोफी है वो रुक जाएगी, बिकॉज आपकी बॉडी अब रिजेनरेट कर रही है। ऑफ कोर्स ये मैंने आपको बहुत ही साधारण सी चीज बताई है, बट हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको डिटेल में और गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी आप और भी कुछ दवाई ले रहे हो, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपकी मसल्स पे, वो भी स्टडी करना है। तो ये आपको मैं बस एक ओवरऑल पिक्चर दे रही हूँ कि किस तरह से आप अपने को रिजुविनेट कर सकते हैं। Yes, ma'am. In the limitation of time, we will take one last question and we'll be closing the session. So the question is coming from Forum. So what are the alternate ways of getting nutrients and calcium and minerals, which generally one gets from milk and milk products when the person is turning to veganism? बहुत सारे, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि कई लोगों का ये सवाल होता है कि देखिए अगर हम दूध दही नहीं ले रहे तो फिर हमारा कैल्शियम कैसे आएगा। सबसे बड़ा सवाल है, देखिए गाय तो दूध दही नहीं पीती है, तो बट उसको भी तो कैल्शियम वही जनरेट कर रही है, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों से कैल्शियम आता है। तो 3 चीजें, एक तो पत्तेदार सब्जियां, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स से आपको मिलेगा, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जरूर खाइए। और दूसरी चीज है कि तिल अपने आप में कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है, और क्योंकि तिल अब गर्मियों में शायद नहीं खा पाएंगे आप,
तो तीसरी चीज जो है आपको रागी का आटा, तो आप रागी का आटा जो है उसको उसकी रोटियां खाइए, आप उसको अपनी डाइट में लाइए और आप देखेंगे कि आपका कैल्शियम बहुत अच्छा रहेगा। Yes. Thank you, Dr. Shika, for that wonderful session. Now I would give the stage to Forum to just close the session. Fine. Thank you, madam. Thank you so much. It was very insightful, and you can just share your screen with the name of the app which you have showed, so people can just get the name again. And this is the app they have developed, and which has also international advisors and a lot of features. You all just go through it, and I hope you use it and it helps you out. This session was wonderful. All the questions we had covered, and on behalf of yes, for in case there are few questions which are went unanswered, right? Yeah. Please share them on community. So we have a community built on our website where anybody can come and post their questions, and a team of doctors and nutritionists will be answering them. So please do utilize this facility as well. And also we are doing, so we have started this Vedic Wellness video series where we talk to experts from all over the world. So we have started with Dr. Alejandro Junger, who's talking about detoxification and the need to eat the rainbow. And we also have discussions with Dr. James Maskell, who's talking about functional medicine. Please do check out these videos, and we will be posting more content. And yeah, that's it. Wonderful, wonderful. And thank you so much. Thank you, madam, and thank you, Nitin, for coordinating. And on behalf of our team RMA, we are very grateful to have you. Thank you all. Our next upcoming session, so one is by IMA, All India Management Association, which is our parent body. It is on 15th May. And the topic is different strokes of management, inspiration from other worlds. And the speakers are Mr. Abhishek Singh, who is artist, and Miss Anjum Chopra, who is cricketer. So these two will be addressing us. Next, RMA is organizing one session, which will, and the speaker would be Mr. Mr. Rupesh, who and his company, who just joined, who just came up with his company is Mac Power CNC, Metoda-based company, and they have recently manufactured a hot air seam sealing machine, a lot of other instruments and products which have come up, which are helpful for hospital industry against this COVID. So we'll go through their journey, how they have developed, how they have developed in such a short time, in 15 days, and we'll get insights. Thank you all for joining today, and you can get in contact with madam, their application and the sessions they are doing. Thank you so much.